صبح دوپہر شام چرچ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے بادشاہ کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہے ہیں عزیزو، آپ مبارک ہیں کہ خدا آپ کو کلام سننے کا فضل عطا کرتا ہے۔ آج صبح ہم بائبل مقدس میں سے جو ابھی ہم نے اپنی رہنمائی کی تلاوت کو سنا، اس تلاوت کی تشریح کو سنیں گے۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا۔ آج کے سرمن کا ہمارا عنوان ہے حقیقی مبارک حالی۔ آج کی تلاوت کا ہمارا عنوان ہے حقیقی مبارک حالی۔ جی ہاں، میرے ساتھ جو آپ نے پیسج کو متن کو پڑھا ہے اور سنا ہے، آج کے میسج کا ٹائٹل ہے حقیقی مبارک حالی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا۔ اس شخص کو، اس بیٹی کو، اس بیٹے کو مبارک کہا گیا ہے جو شخص شرارت سے بھرے ہوئے لوگوں کی صلاح کو قبول نہیں کرتا، ان کی صلاح کو سنتا نہیں، ان کی صلاح کو مانتا نہیں، ان کی صلاح کو، شریر لوگوں کی صلاح کو جو شخص فالو نہیں کرتا، بائبل مقدس میں اس شخص کو مبارک کہا گیا ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ آپ بھی دیکھیں بائبل مقدس میں سے، ضرور آپ میرے ساتھ اپنی بائبل کھولا کریں۔ پہلا زبور اس کی پہلی آیت مقدسہ کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے۔ یوں لکھا ہے بائبل مقدس میں، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ وہ شخص مبارک ہے جو مشورے نہیں لیتا شریر لوگوں سے۔ کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ابھی ہم اس وقت چونکہ مصیبت میں ہیں تو اچھا ہے کہ اس شخص کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، کبھی ہم ان سے ملے تو نہیں، کبھی ہم ان کے گھر تو نہیں گئے، لیکن آج ہم اس شخص سے کام لے لیتے ہیں، جاتے ہیں، اپنی بات شیئر کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ جسمانی ہیں، چاہے وہ لوگ دنیاوی سوچ رکھنے والے ہیں، دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی خواہشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے تو اپنا کام کروانا ہے، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے جاننے والے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے محلے دار ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ہمسائے ہو سکتے ہیں، لیکن عزیزو، جو شخص ناہموار جبے میں پھنس جاتا ہے، ابلیس کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ ناہموار جبے میں بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے مت جتو، ایسی رفاقت جس میں جب آپ جاتے ہیں اور وہ روحانی رفاقت نہیں ہوتی، اس رفاقت سے آپ کو روحانی لاس ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کو روحانی لاس ہوتا ہے، آپ روحانی دکھ اٹھاتے ہیں۔ آپ اپنی جسمانی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اس کا حل لینے کے لیے جب آپ شریروں کے پاس جاتے ہیں، شرارت سے بھرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ بھی شرارت کرتے ہیں، کیونکہ شریر جو لوگ ہیں ان کے اندر شرارت ابلیس میں ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو لے لیتے ہیں اور ان کے پاس چل جاتے ہیں، پھر ان کے پاس بیٹھتے ہیں، پھر اپنی پرسنل باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں اور ان سے صلاح لیتے ہیں، ان سے پھر آپ مشورے لیتے ہیں، تو عزیزو، جو وہ مشورے آپ کو شریر لوگ دیتے ہیں، جسمانی لوگ دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہوتے، بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ اور اگر آپ کو وقتی طور پر وہ درست لگ رہے ہیں تو میں بھی آنے والے وقت میں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، آنے والے وقت میں وہی مشورے آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ لیکن وہ شخص مبارک ہے جو پاکروں سے صلاح لیتا ہے، یسوع مسیح ناصری سے صلاح لیتا ہے، کلام سے صلاح لیتا ہے۔ ایسی بیٹی، ایسا بیٹا مبارک ہے جو کلام سے صلاح لیتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ کئی دفعہ ہمارے معاملات کو بے شمار لوگ جان جاتے ہیں، ہماری پرابلمز کو جان جاتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں، ان میں کچھ روحانی لوگ بھی ہوں گے، کچھ جسمانی لوگ بھی ہوں گے، آپ سب کی بات سنیں،
और फिर इन बातों को आप यीशु के हुजूर लेकर आए। और जो जो आपको मशवरे दिए गए, आपको सलाह दी गई, आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि आप फंस चुके हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, तो सबकी बातों को आप यीशु के हुजूर रखें। तो जो रूहानी लोगों ने आपको मशवरे दिए होंगे, ज़रूर पाकू आपको आगाह करेगा कि मेरी उस बेटी की बात को मान और उस बात को फॉलो कर, मैं तेरी ज़िंदगी में पहुँच सकता। लेकिन जिस्मानी लोगों के जो मशवरे होते हैं अजीज़ों, वो जिस्म की ख्वाहिशों से बने होते हैं। उन मशवरों के अंदर मसीह की रज़ा नहीं होती, उन मशवरों के अंदर पाकीज़गी नहीं होती, उन मशवरों के अंदर मसीह की मर्जी नहीं पाई जाती। इसलिए मेरी आज सुबह जितने यहाँ पर हाज़रीन मुक़द्दसीन मौजूद हैं और जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, आप तमाम अजीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को मसीहा की हजूरी में लेकर आए, मसीहा की कदमों में ले आए, यीशु मसीह नासरी के पाक तख्त के हुजूर लेकर आए और अपनी प्रॉब्लम्स का हल भी यीशु से पूछें और यीशु से सलाह ले, पाकरू से सलाह ले। पाकरू आपका दूसरा मददगार है। क्या कभी आपने पाकरू से मदद ली? क्या अभी कभी आपने पाकरू से कहा, पाकरू तू मेरी मदद कर, मैं इस वक्त परेशान हूँ, मैं तुझसे सलाह लेता हूँ, मैं क्या करूं कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे इस प्रॉब्लम से निकल जाएं, मैं क्या करूं कि दोबारा से मेरी टूटी हुई दुआ या रूटीन बहाल हो जाए, मैं क्या करूं कि मैं मसीहा को पसंद आ जाऊं। जब आप पाकू से कहेंगे, ज़रूर पाकू आपकी सुनेगा, पाकू आपको जवाब देगा, पाकू आप में दिलचस्पी रखता है। जी अजीज़ों, गौर से सुनिएगा, पाकरू आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है और आप में दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सलाह, अपना मशवरा, आप जो भी आपके दिल में थॉट है, जो भी आपके दिल में इरादा है, उसे दुआ में रखें और आप सबकी बात सुने, लेकिन आप इन बातों को ज़रूर आप दुआ में रखें। जब आप दुआ में रखेंगे तो मसीहा आपको ज़रूर गाइड करेगा। कई दफ़ा लोग हमारी प्रॉब्लम्स को जान जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, तो वो खुद ब खुद ही हमें मशवरे देना शुरू कर देते हैं। तो इंसान की मजबूरी बन जाती है उन मशवरों को सुनना, लेकिन आप उन पर अमल ना करें, मत अमल करें, आप दुआ में रखें। अपनी हर प्रॉब्लम को आप दुआ में रखें। अपनी छोटी सी बात भी मसीह यीशु नासरी से शेयर करें, आपको यीशु मसीह नासरी उसका जवाब जरूर दे। आगे लिखा है, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। जी हाँ, वो शख्स मुबारक है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। ऐसे लोग जो गुनाहों से, खताओं से भरे हुए हैं, कई दफ़ा उनमें जाने का हमें मौका मिलता है, लेकिन जो ही आपको पता चल जाता है कि ये लोग ठीक नहीं, ये जगह ठीक नहीं, तो मत वहाँ पर खड़े हो। आपका वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल का सबब हो सकता है, आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इसलिए प्लीज़ आप खताकार लोगों की जमायत में, उनकी रफाकत में ना बैठें। आप जब ना बैठेंगे, उनसे किनारा करेंगे, तो आपको खुदा के हाथों में महफूज रखेगा। मैंने ये भी सीखा है कि जब हम खताकार लोगों की जमायत में खड़े हो जाते हैं, उनकी राह में खड़े हो जाते हैं, उनसे उनकी कंपनी में आ जाते हैं, उनसे सलाह लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो अनाइंटिंग होती है, जो मसा होता है, वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तारीकी का जोर होता है और हमारी लाइफ के अंदर जो मसा होता है वो डिस्टर्ब होता है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो खताकार लोगों की राह में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर वो ये भूल जाते हैं कि हम यीशु के खून खरीदे लोग, हम चुने हुए लोग, हम अलग किए हुए लोग, हमारा चुनाव हुआ है, हम आम नहीं हैं, हम अनमोल हैं,
हम प्रीशियस हैं। हमारा चुनाव किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि जिंदा खुदा ने हमारा चुनाव किया है, इसलिए हम आम नहीं हैं। लेकिन कई दफा हम भूल जाते हैं। जो ही आप भूल जाते हैं कि आप खास लोग हैं, आप बड़े के यीशु मसीह नासरी के पाक खून से खरीदे हुए लोग हैं, जब आप इस खास बात को भूल जाते हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी में दुख, परेशानी और मुसीबतों का सामना करते हैं। मुबारक है वो शख्स जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, नॉट स्टैंड, अपने कदम रोके ऐसी महफिलों से, ऐसे प्रोग्राम से, ऐसी जमायत से, ऐसे लोगों से, वहां पर खड़े होने से अपने कदम रोके, वहां पर मत जाए, अपने आप को बाज रखे, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। और आपके लिए छोटी बरकत नहीं है, आपको ब्लेस्ड कहा गया है। यू आर ब्लेस्ड, आप मुबारक हैं, आपको कहा गया है। जितने यहाँ पर मुकद्दसीन हैं, जितने हाजरीन मुझे वॉच कर रही हैं, आपको कहा गया है आप मुबारक हैं। जी हाँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तू मुबारक है, क्योंकि तू शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, तू खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और तीसरा बड़ा हमारा पॉइंट है, लिखे है, और ठट्ठा बाजू की मजलिस में नहीं बैठता। वो शख्स, जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो शख्स मुबारक है जो ठट्ठा बाजू की मजलिस में नहीं बैठता। जी हाँ, आप अपनी लाइफ पर गौर करें, कैसे डेली आप अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। क्या जब आप फ्री होते हैं और अपने आप को बोर महसूस करते हैं तो क्या आप ठट्ठा बाजू की मजलिस में चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए? आपके दिल में ये बात होती है कि हमने ऐसा तो बनना नहीं है, हमने नहीं ऐसा होना, हमने ठट्ठाबाज लोग नहीं बनना। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम पास कर लेते हैं। आपकी इस सोच की वजह से आप रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। जब आप ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठते हैं तो वहाँ का तारीकी से भरा माहौल आपको छूता है और आपकी लाइफ के अंदर अनाइंटिंग को डिस्टर्ब करता है। आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप रूहानी तौर पर कमजोर होते हैं। आप फील करेंगे, अगर आप फील नहीं करते शायद इसीलिए आप रूहानी तौर पर डिस्टर्ब हैं, आप महसूस करेंगे। कभी आप ठट्ठाबाजों की मजलिस में आपका जाने का मौका आपको मिला हो, आपका इत्तेफाक हुआ हो, तो कभी शायद आपने फील नहीं किया, लेकिन ये सच्चाई है, आप रूहानी तौर पर डिस्टर्ब हो। ठट्ठाबाज जो लोग हैं वो हमेशा इंसान को भी और खुदा को भी ऐसे लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं। जी हाँ, ठट्ठाबाज लोग कलाम को भी ठट्ठों में उड़ाते हैं। उन्होंने यीशु को भी ठट्ठों में उड़ाया, आज भी वो कलीसिया को ठट्ठों में उड़ाते हैं, आज भी वो कलाम को ठट्ठों में उड़ाते हैं, आज भी वो मसीहा की अलानिया तजलील करते हैं। लेकिन ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू एक मासूम भेड़ है, इसलिए अपने कदम रोक ठट्ठाबाजों की मजलिस में जाने से। जब तू अपने कदम रोकेगा तो खुदा तुझे ब्लेस करेगा, खुदा तेरे खानदान को ब्लेस करेगा, खुदा तेरे कुंबे को बरकत देगा, खुदा तेरी फैमिली को बरकत देगा, खुदा तेरे घराने को बरकत देगा, खुदा तेरे अज़दवाज को ब्लेस करेगा, खुदा तेरे बच्चों को ब्लेस करेगा, खुदा तेरे बिजनेस को ब्लेस करेगा, खुदा तेरे किचन को बाबरकत बना देगा। क्योंकि ठट्ठाबाजों की मजलिस में जाने की वजह से तेरे अज़दवाज के अंदर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ठट्ठाबाजों की मजलिस में जाने की वजह से तेरे बच्चे भी अब खराब हो रहे हैं। ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठने की वजह से तेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। ठट्ठाबाजों की मजलिस में टाइम देने की वजह से तेरे किचन के अंदर बेबरकती आ चुकी है। ठट्ठाबाजों की मजलिस में जाने की वजह से तेरा घर टूट रहा है, तेरा घर तबाह हो रहा है, तेरे घर के अंदर रूहानी माहौल डिस्टर्ब हो चुका है, तेरी पर्सनल शख्सी दुआ डिस्टर्ब हो चुकी है। आज जरूरत है, आज सुबह तू अपनी जिंदगी पर गौर कर। क्या तू ठट्ठाबाजों की मजलिस में जाती है? क्या तू ठट्ठाबाजों की मजलिस में जाता है? अगर ऐसा है तो वहां पर जाने से अपने कदम रोक। मुबारक है वो शख्स जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। कई दफा हमारा वहां से गुजरने का इत्तेफाक हो जाता है, हमें दुनिया में रहते हुए मजबूरन वहां से गुजरना पड़ जाता है,
लेकिन जो रूहानी लोग हैं वो उनमें बैठते नहीं हैं, ऐसी कंपनी को चूज नहीं करते, चुनते नहीं हैं, वो उनसे किनारा करते हैं। ना तो रूहानी लोग, मसीही लोग, बचे हुए लोग, ईमानदार लोग, मुकद्दसीन, यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग, ना तो शरीरों की सलाह पर चलते हैं, ना खताकारों की मजलिस में खड़े होते हैं, और ना ठट्ठाबाजों की जमायत में, जी, ना खताकारों की राह में खड़े होते हैं और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठते हैं। ये उनकी जिंदगी का एक असूल है, उनकी जिंदगी का लॉ बन जाता है, उनकी जिंदगी का कानून बन जाता है, और वो कानून बाइबल मुकद्दस से लेते हैं और सीखते हैं और कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, और फिर वो ब्लेस रहते हैं, मुबारक रहते हैं, बाबरकत रहते हैं, मसा से भरे रहते हैं। आज सुबह सवेरे हमने यीशु की हजूरी में कलाम को सुना अभी कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। इस दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत मशवरे लिए और वो अपने आप को तबाह कर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, उनके ख़ानदान तबाह हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें गलत सलाह मिली, उन्होंने शरीरों से सलाह ली। जैसे मैंने पहले बताया, कई दफ़ा हमें जिस्मानी लोगों से, जितने मुकद्दसीन यहाँ मौजूद हैं सारे बड़े गौर से सुनिएगा, कई दफ़ा हम ये सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी में ये बातें होती हैं कि पहले भी मैंने सलाह ली थी उस शख्स से, चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो मुकद्दस नहीं है, चाहे उसने निजात हासिल नहीं की, चाहे उसने तोबा नहीं की, चाहे उसने बपतिस्मा नहीं लिया, चाहे वो चर्च नहीं जाता, यीशु को नहीं मानती, यीशु को नहीं मानता, तो भी मैंने उससे मशवरा लिया था और उसने मुझे अच्छी सलाह दी थी। लेकिन अजीज़ों, शायद ऑन द स्पॉट आपको वो मशवरा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप नहीं जानते इन फ्यूचर उसका रिजल्ट कितना भयानक होगा। कई दफ़ा इंसान ऐसे फैसले कर बैठता है जिसका खमियाजा, जिसका जो उसकी बैकफीड होती है, वो ना खुद आपको भुगतनी पड़ती है बल्कि आपके ख़ानदान को भी भुगतनी पड़ती है। इंसान अपने गलत फैसलों की वजह से या दूसरों से गलत सलाह लेने की वजह से या अपने जिस्मानी फैसलों की वजह से कई मरतबा इतना फंस जाता है कि उसका कर्जों से निकलना मुश्किल हो जाता है, बीमारियों से निकलना मुश्किल हो जाता है, परेशानियों से निकलना मुश्किल हो जाता है, ख़ानदानों से बीमारियां जान नहीं छोड़ती, ख़ानदानों में बीमारियां डेरे लगा लेती हैं, गलत सलाह लेने की वजह से, गलत मशवरे लेने की वजह से। बेशुमार लोग वो कहते हैं हम अल्कोहल जो है वो पेट भरने के लिए नहीं यूज करते बल्कि एज एक मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप अल्कोहल को एज ए मेडिसिन यूज करें। ये मशवरा जिसने भी आपको दिया वो शख्स खुद भी इब्लीस के हाथों में है और उसे अभी कलाम सीखने की ज़रूरत है। आपने शरीर से मशवरा लिया और आप अल्कोहल को यूज करते हैं मे बी एज ए मेडिसिन, तो भी आप ठीक नहीं कर रहे, इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक वक्त आएगा यही अल्कोहल आपके बदन का हिस्सा बन जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर फैल जाएगी और आपको ये अल्कोहल बीमारियों में गिरा देगी, आप बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, आप हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंच जाएंगे, अस्पतालों में पहुंच जाएंगे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, क्योंकि आपकी डिजीजेस बढ़ जाएंगी, आपकी बीमारियां मौत के करीब आपको ले जाएंगी। और स्टार्ट कैसे हुआ? हमने गलत मशवरा इंतखाब किया। मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर आप शरीरों की सलाह पर चलते हैं तो आज से तौबा करें। जितने यहाँ पर हाज़रीन मुकद्दसीन मौजूद हैं और जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, आप सबको मैं मसीह का खादिम होते हुए यूँ कहना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में से जो अभी हमने तिलावत को सुना कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर आप शरीरों की सलाह पर चल रहे हैं तो आज सुबह मौका है आप अपने गुनाह का इकरार करें और आप अपनी मशवरे आप यीशु से लें, पाकूम से लें, पाकूम की हजूरी में आते हुए यीशु के कदमों में आप झुक जाएं
और यीशु से कहें, सॉरी जीसस, मैंने तुझे छोड़ा और मैंने जिस्मानी लोगों पर, मैंने इंसान पर इन्हिसार किया। सॉरी जीसस, मुझे मुआफ़ कर, अपने लहू से धो और मुझे मुआफ़ कर। एलोहीम खुदा, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पाक हजूरी में आ चुका हूँ और मैं यीशु का लहू अपने ऊपर मांगती हूँ। मुझे अपने बेटे यीशु के लहू से पाक कर, अपने लहू से, अपने बेटे यीशु के लहू से पाक कर। ऐ बाप, मुझे अपने बेटे यीशु के खून से धो डाल और मुझे निकाल इन जो मैंने बैड लोगों से बुरे मशवरे लिए हुए हैं, इन बुरी सोबत से मुझे निकाल। और मुझे जीसस तू अब सलाह दे कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं। और मसीह से भी वादा करें कि आज के बाद जीसस, मैं खताकारों की राह में कभी खड़ा नहीं होऊंगा और मैं ठट्ठा बाजू की मजलिस में मैं कभी नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने तेरे कलाम से सीख लिया है। आज अगर आपने ये पाक कलाम अपनी ज़िंदगी में ले लिया है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, तो आप मुबारक हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तू मुबारक है। तुझे मसीहा कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजू की मजलिस में नहीं बैठता। तू मुबारक है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तू मुबारक है। तमाम मुकद्दसीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब्दी नजात चर्च यूहानाबाद जी ब्लॉक में जो लोग मौजूद हैं और जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, आप तमाम मुबारक हैं, क्योंकि आज सुबह आपने अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकरार किया है और मसीह यीशु के साथ आपने प्रॉमिस किया है। और मेरा ईमान है कि यीशु नासरी ने आपको अपने लहू से धोकर पाक साफ कर दिया है और आपके गुनाहों को मुआफ़ भी कर दिया है। और आपको यीशु अब ये सलाह देता है कि ऐ मेरी बेटी, हर रोज़ तू मेरे हजूर आया कर और मुझसे दुआ किया कर, मुझसे बातें किया कर। हर रोज़ तू अपनी बाइबल मुकद्दस को खोला कर और उसमें से पाक अल्फाजों को पढ़ा कर। हर रोज़ प्रस्तुश किया कर, चर्च जाया कर, मुकद्दसीन की रफ़ाकत में रहा कर और फेलोशिप को कभी ना छोड़े। मसीह फेलोशिप को कभी ना छोड़े, मसीही रफ़ाकत को कभी ना छोड़े। जी हाँ, ये आपको रूहानी इस्लाह है, कभी मसीही रफ़ाकत को ना छोड़े। कई मरतबा हम समझते हैं हम खुद ही कलाम को बहुत जानते हैं। अच्छा है अगर आप, शाबाश अगर आप कलाम को बहुत जानते हैं, तो अभी और कलाम आपको सीखने की ज़रूरत है। आप मसीही फेलोशिप करें, मुकद्दसीन की रफ़ाकत में आए, मुकद्दसीन की जमात में आए। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएंगे और जितनी यहाँ पर मौजूद है हम सब